here for a capacity building workshop for you all so that you can give the best to your kids. And for that, I would be introducing Dr. Meenakshi Narula. Just a small request before I start, before she starts, the session will be little interactive. So if any question is being asked, you can come forward near your laptop to reply, because the more engaging it is, the more better learning it would be. So with this, I would like to just let me see her profile. Yes. So Dr. Meenakshi Narula, Vani sir, are you there? Okay. So let us proceed. I think sir is busy somewhere. Okay. Dr. Meenakshi Narula is a principal of Shamford Futuristic K-12 School, UP. She is also a resource person, founder, director of Mentoring the Mentors, and she has authored several books, master trainer of Microsoft Master Trainer, Google Educator Group Leader. She is she has embarked her professional journey from 2001 July. It's almost 23 years. Oh my God. And she works for several topics. I can see throughout her career, she has completed over 1,000 short-term courses, workshops, training programs from esteemed institutes both in India and abroad. And her exceptional contribution has been recognized with the prestigious awards such as Rashtriya Shikshan Ratan, the Global Teachers Award, the ICT Felicitator Award, and the journey continues. Dr. Narula's resilience and mindfulness has been nurtured through her experience in the School of Hard Knocks. Despite all odds, she continues to share her knowledge in a blended environment. She leads the research and innovation cell at her school, where she fosters discussions on the challenges and concerns in education, innovates and strives to raise the standards of school education. The valuable insights gained from these endeavors are always shared with the entire teaching community, as Dr. Narula firmly believes that individually we are just one drop, together we are an ocean. A very nice thought. Yes, together we are an ocean, which will help us in bringing change in the educators' fraternity. So from here, I hand it over to Dr. Meenakshi Narula to take over the session. Thank you, Rachna ma'am, for this wonderful opportunity. And I would like to wish a very good morning to all the teachers, very cheerful morning, who all are sitting here this Sunday morning and want to learn something, want to work on this capacity building program. Today, we're going to talk about arts integration. So before I begin and share my screen, just would like to ask you, am I completely audible to you all? If you can raise your hand so that I can get to know. Yeah, wonderful. Thank you all of you for sharing that. So with this note, let me start sharing my screen. So today, we're going to talk about art integration. We all are artful educators. Screen is visible to you all? Yes, perfectly It's fine. visible. Yeah. Yeah, let me just increase a little bit so that you don't require the subtitles. Okay. So, dear all, you all are the artful educators. Let's see. I want to ask you, are you all artful educators? What do you mean by being an artful educator? If anyone can share, what do you mean by being artful? Anybody who is willing to share any response? Teachers, if you are participative, it will help us engaging the session. Yes.
Otherwise, Sunday morning, you will not enjoy, you will regret coming all the way from your comfort zone to school. For me, art is creativity. Great. Anyone else? Yes? Art is creativity. Art, as you can see here on the picture, there are so many posters on the wall where I'm standing. Usually, what do we think? Art is drawing picture. Art is all about colors. Art is all about painting, drawing, posters, right? All this. Today, we are going to explore what exactly is the meaning of being an artful educator. Is it only drawing? Is it only just playing with colors around? Or what? Maybe it's a bigger umbrella. So let's see what is under this bigger umbrella of being an artful educator. Before that, I want all of you to unleash your creative identity where art and introductions they converge. I want at least 5 of you minimum volunteers to talk about yourself, to share your identity, to share your name as being unleashing your artistic prose where art and introduction they intertwine. Start with the initial letter of your name and share any art form that you really love to do in your class. As you can see here on the screen, my name is Meenakshi, and from each letter of my name, I have mentioned here the different art forms. M, mandala art. How many of you engage your students in mandala art? Usually mathematics teachers, they love to do it. Yeah, Rachna ma'am is raising her hand. Yeah, and the teachers, yes? At least you can raise your hand. Through gestures, we'll be able to understand. That is also an art of communication, isn't it? Meenakshi ma'am, first we need to ask whether they are aware of mandala art because Kashmir division Okay. pattern is little different from what we Okay. follow. Are you all aware what is mandala art? Yes. Yes, they are, I guess. Yeah. They have Yeah, heard we can about see it. smiling faces. Yeah. So easel painting, and then another embroidery, any kind of embroidery. It can be Kashmiri embroidery, it can be simple cross stitch or whatever embroidery. And N, nature photography. A, acrylic pouring. K, knitting. S, sketching. H, hand lettering. And I is ikebana. Ikebana is the Japanese flower arrangement. So there are different art forms that I have listed here from each letter of my name. I want at least some of you can come here near the screen and share your name. And from that first letter of your name, share any of the art form that you are using currently in your classes to make your lessons interesting for your students. Yes? Any one of you. Let me see who comes here. Volunteers. Let's the first row start participating first. The one in black in the first row, would you like to participate? Come forward, speak out your name and anything, any creativity which comes in your mind. Come on, try. It's just a learning session. If you all get involved, you all will enjoy it. Yes, the one in black. Please come forward. We can see you wanted. डर के आगे जीत है. Yeah, yes. May I know your name, please, ma'am? Yes, we can see you now. Perfect. You want to type? Okay, fine. Go ahead with that. My name is Aisha.
Okay. Yes. It starts with A or I? A. A. Okay. So any art form that you're using in your classes, starting from letter A, if you can recall, A. Okay. Or otherwise, if I ask any art form that you are using in your classes. Madam who just shared her name was Aisha A. It comes to me like writing acrostic poems. As I have written just a few art forms, had I would I been able to arrange the form into form of a poem, it would have been acrostic poem starting from each letter of my name. So that would have been a wonderful art form. Yes, ma'am. May I know your name, please? Good morning, ma'am. Myself, Yes. Bhumika Gupta. Okay. It's BHU and my K. Okay. Bhumika. K. Okay. So, Bhumika ji, from B, which art form you prefer to use? Or maybe have maybe heard of. You have not used it so far, but you know about that art form. No? What do you teach? Which subject you teach? Science and English. Science and English language. Okay. So if I talk about in English language, you go ahead with book reviews. You go ahead with bookmark making. They all are the art forms, right? Asking your students if they are creating bookmarks, you are teaching about various poets, authors, they are pasting their picture and writing something about them, and then they are creating beautiful bookmarks and they can use in the books, right? So that can be a wonderful art form that is starting from the first letter as of your name, B. So that is also an art form. Wonderful. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so my dear teachers, it's not necessary that we have to use that art form. This is just, I just wanted to engage with all of you. That's why I started asking if any kind of art form that you can recall starting from the first letter of your name. Okay, now here is the picture in front of your screen. Here on your screen, there is a picture. Just have a look at this. Think about it for 30 seconds. And then let me know, what have you observed? Yeah, I can notice in the first row, the beautiful lady in a peach color suit. She's just, I mean, it's just trying to draw something out of this picture. Yeah. Please, ma'am, you can come forward and share your views with others also. मैम इस पिक्चर से हमें ये समझ आ रही है कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ पेपर में लिख रहे हैं और एक स्टूडेंट है जो वो पिक्चर में देख रहा है, तो पिक्चर में उसको क्रिएटिविटी से हम ज्यादा चीजें सिखा सकते हैं, मतलब वो क्रिएटिव थिंकिंग रख रहा है, तो बाकी नोटबुक में राइट करके या कुछ करके इतनी ज्यादा उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आती जितना हम उसको पिक्चर्स के थ्रू समझा सकते हैं या क्रिएटिविटी के थ्रू उसको लर्न करवा सकते हैं. ओके थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर व्यूज. और इसके अलावा कोई और टीचर जो ये बताए कि उनको कुछ और नजर आ रहा है? होता है ना कि हर कोई अलग जाएंगे. यस मैडम, या प्लीज कम. द मैडम हु इज सिटिंग हियर इन द सेंटर, या ब्लू दुपट्टा, प्लीज. हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि उनको जो उनके टीचर हैं या जो भी हैं, जो छोटा बच्चा है वो आउट ऑफ द विंडो देखना चाह रहा है, वो बाहर की दुनिया चीजें देखना चाह रहा है, मगर उसको वो ऑलो नहीं किया जा रहा है कि आप बाहर, आपको ऑलो नहीं है देखना. और जो बाकी बच्चे वो एक रोबोट की तरह बिठाए गए हैं, उनको सिर्फ जो हमारी बुक्स वगैरह हैं उनसे ही रीडिंग जो करवाई जा रही है, वही टेस्ट दिए जा रहे हैं. उसके अलावा उनको कोई चीजें नहीं दिखाई जा रही हैं बाहर की दुनिया की. मतलब उसमें वही है कि किताबी कीड़ा ही आपको बनना है, जो बुक्स में है वही आपने पढ़ना है.
उनको मतलब उनका जो साइड पे कुछ ऐसे वो लगा हुआ दिखाई दे रहा है कि वो आगे पीछे भी ध्यान ना दे, जो उनकी बुक में है वही पढ़े, उसी चीज का टेस्ट दे। हाँ जब बाहर अगर विंडो से बाहर देखेगा उसको कई सारी और नई चीजें दिखेंगी या वो और बिल्कुल, क्रिएटिव। वंडरफुल मैम, रियली ग्रेट। आई मीन यू हैव गॉट अ कीन ऑब्जर्वेशन। तो सर्टेनली हम क्या क्या करते हैं हम अपने क्लासेस में, वी वांट अवर स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन ओनली ऑन द बुक्स। जैसा कि आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया किताबी कीड़ा, बुक वॉर्म ही हम उनको बना रहे हैं कि किताबों में देखो जो लिखा है वो याद कर लो। वो घोड़े की आंखों में जैसे वो साइड पर लगा देते हैं कि इधर उधर नहीं देखना, जैसा गाइड किया सीधा सीधा चलो। तो हम भी बच्चों को बोल दिया कि ये किताबें पढ़ी है सामने, ये वर्कशीट पेपर पढ़ा है, लुक एट इट। और जो बच्चा बाहर की दुनिया से कनेक्ट करके आई वॉन्ट टू फ्लाई, वो बाहर की दुनिया से रियल लाइफ से कनेक्ट करके अपने थॉट्स शेयर करना चाहता है, उसको हम रोक देते हैं, उसको बोलते हैं नहीं वापस इधर आ जाओ। और उसकी क्रिएटिविटी को काट छांट कर अपने जैसा, जैसा कि अगर हम सोचे कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ही तुम सोचो, जो आंखों में मेरे एक पर्सपेक्टिव है वो ही सबकी आंखों में होना चाहिए, किसी और का कोई दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, ये हम चाहते हैं, है ना। थैंक यू मैम, वंडरफुल। थैंक यू। Yeah. Now have a look at another picture. Ma'am, can I quote one example to it? Sure, ma'am. Sure. You're most welcome. Yeah. See, most of you, आप लोग mostly kindergarten से हो। ये जो अभी मीनाक्षी मैम ने बोला है, ये थॉट प्रोसेस kindergarten से ही हम बच्चों में इनकलकेट कर देते हैं। We always say think out of the box. लेकिन अगर बच्चा कलरिंग करने जा रहा है, एप्पल कलर कर रहा है, अगर वो ब्लू कलर करेगा या पर्पल कलर करेगा या ग्रीन कलर करेगा, आप उसे करने दोगे? हमने बच्चे का माइंडसेट कर दिया नहीं, एप्पल हैज टू बी रेड इन कलर। तो राइट फ्रॉम द लाइक चाइल्डहुड हम लोग उसके माइंड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कलर इनसाइड द लाइन, कलर इनसाइड द बॉक्स, डोंट गो आउट। तो वो इमेजिनेशन, वो क्रिएटिविटी जाएगा कैसे? तो kindergarten teachers plays a very crucial role for this creative thinking in the child's mind. Yes, ma'am. Wonderful. Thank you, ma'am. So this is another picture. Can anyone interpret what is happening over here? I want another teacher to come forward and respond. One who has not earlier responded. Especially backbenchers. Yes. Teachers, be participative, then only you are going to enjoy the session. Anybody can come forward, those who have not answered earlier. Please come forward so that you enjoy the session. You can feel the session. See, अगर मैं अकेली यहाँ से स्क्रीन से देखकर आपको पढ़ के बोल के बता जाऊंगी ना, आपको कुछ इंटरेस्ट आएगा ना, लर्निंग होगी, कोई फायदा नहीं। या यस मैडम। Yes. या मैम इसमें जो जब बच्चे छोटे होते हैं तब अलग अलग कलरफुल हर एक जगह जो भी देखते हैं कलर, जब वो पढ़ाई में चले जाते हैं बस पढ़ाई पढ़ाई बस और कुछ नहीं उसके अलावा। देखिए बच्चे आते हैं, स्कूल में एडमिशन हो रहा है, देखिए कितने कलरफुल बच्चे दिखाए गए हैं। दे आर स्माइलिंग फेसेस, राइट, एज यू हैव राइटली ऑब्जर्व्ड एंड पॉइंटेड इट आउट। और जब वो स्कूल में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ड्रेनेज के लिए पाइप लगे हुए हैं, हम क्या निकाल देते हैं बच्चों में से? क्रिएटिविटी खत्म, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि हम उनको कहते हैं वो सोचो जो हम सोच रहे हैं। क्रिएटिविटी इज थिंकिंग यूनिक, डिफरेंट, जो दूसरा नहीं सोच पा रहा। हम उनको बोलते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा सोचो, जैसे हम बोलते हैं वैसे बैठो, सीधे बैठो, ये नहीं करना वो नहीं करना। आई मीन डिसिप्लिन के नाम पर हम कुछ और ही सिखाना शुरू कर देते हैं उनको। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, वो अलग से सवाल जो पूछते हैं हम बोलते हैं कि नहीं बाद में इसके बारे में बात करेंगे, और ना बात कभी आती है ना उस सवाल का जवाब दिया जाता है, बस हम जो बताएंगे वही समझाते हैं। और फिर जैसे एक फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनते हैं तो उस चीज के लिए पहले मोल्ड बनाए जाते हैं। सपोज मेरे हाथ में ये कप पानी का गिलास है, मोल्ड बना दिए जाते हैं, तो इस मोल्ड के अकॉर्डिंगली सारे ग्लास पूरे असेंबली लाइन में ऐसे ही बनते चले आएंगे, चाहे वो किसी ऑटोमोबाइल का पार्ट हो चाहे कुछ भी हो, राइट।
थोड़ा सा अगर उसमें कोई डिफरेंस आ जाता है उस पार्ट को निकाल दिया जाता है। हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को भी एक असेंबली लाइन आपको नजर आ रही है वो बना दिया है। असेंबली लाइन में है ना, देखा होगा फैक्ट्रीज में, अगर रियल लाइफ में नहीं विजिट किया एटलीस्ट यू मस्ट हैव सीन ऑन योर सोशल मीडिया और समवेयर एल्स कि उसमें जैसे प्रोडक्ट बनते चले जाते हैं तो वो एक जैसे बनते चले जाते हैं, चाहे वो चिप्स के पैकेट में चिप्स ही क्यों ना डल रहे हैं, अगर कहीं कम ज्यादा हो गया है, कहीं कुछ चीज होगी, वो डिस्कार्ड हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से हम बच्चों को भी ऐसे ही उनको असेंबली लाइन के थ्रू एक ऐसे ढांचे में डालना चाहते हैं कि सब बच्चे एक जैसे, जो कि हो नहीं सकते, बट वी ऑल आर ट्राइंग इट। हर एक बच्चे की अपनी एक क्रिएटिविटी है, उसकी थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, उसका सोचने का, उसका प्रेजेंट करने का जो तरीका है, दैट इज डिफरेंट, राइट? तो थैंक यू मैम फॉर योर वंडरफुल व्यूज. So it's like as it is there on the screen. Now the teacher is asking, I'm sure my lecture has made you think. यही सोचते हैं बच्चों को कि हमने पढ़ाया, चलो बच्चों ने कुछ सोचा होगा. And what is the response of the students? The first child is saying, what a bore. Maybe the child was not engaged in the class. And then some of them, they were sleeping. And the child is saying, I stopped listening after 5 minutes. 5 मिनट पहले आपको बच्चा जज कर लेता है, मैम ने आज पढ़ाना है कि हमें सुलाना है. So you have to create a hook in the first 5 minutes in your class. सोच के आते हैं कि शुरू से अच्छा आज हम ये पढ़ेंगे, किताब का ये पन्ना खोलिए, अब हम ये पढ़ेंगे, अब हम ये करेंगे, कल क्या किया था, होमवर्क किया है कि नहीं किया, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं. जो कराना है मुद्दे की बात करें, डायरेक्ट उस पर आए, उस पर कनेक्ट करें, क्रिएटिविटी के थ्रू, एक एक्टिविटी के थ्रू, कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट एंड मे बी क्रिएटिंग अ हुक. आप कोई वीडियो प्ले कर दीजिए छोटा सा, राइट? तो इसके थ्रू हम बच्चों को एंगेज कर सकते हैं. एक पोस्टर ही दिखा दो कि इसमें क्या नजर आ रहा है. सारे बच्चे एकदम से पहले, अगर सपोज आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उससे पहले हिंदी का पीरियड था, सब भूल जाएंगे हिंदी में क्या हुआ. दे ऑल विल बी देयर कि हाँ इस पिक्चर में क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है. Am I right? Anybody would like to share his or her response related to this, whatever I have observed? Yes? Anyone? Are there only female teachers? Or some male teachers are also there? No idea, ma'am. Only females? Okay. So anyone who would like to share the response, maybe who is thinking differently, or maybe this is what we are doing, isn't it? क्या ख्याल है आपका इस पिक्चर के बारे में? बच्चे आते हैं अलग अलग सोच लेकर, हम क्या करते हैं, काट छांट कर उनको अपने जैसे सोच रहे हैं वैसे सोचो. हम बोर्ड पर एक तस्वीर बना दे, बच्चों को बोलो वैसे बनानी है, थोड़ी सी चेंज करके बना दे, नहीं मैंने तो ऐसे बनाई है, यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. ये डेफिनेशन मैंने जो लिखाया है ऐसे ही लिखना है, तब मार्क्स मिलेंगे. थोड़ी सी चेंज कर दी, बदल दी, वर्ड चेंज हो गए तो मार्क्स विल नॉट बी गिवन. एंड किसके ऊपर फोकस करते हैं हम? क्रैमिंग, रोट लर्निंग. बच्चा अपने अकॉर्डिंगली वो डेफिनेशन के शब्दों में भी कुछ चेंज नहीं कर सकता. So that's not the objective. So here, what is happening? It's a knowledge sharing session. जो हम अभी भी कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? It's a knowledge sharing happening. और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? No, you cannot ask a question. क्या वो knowledge sharing हुआ जब बच्चे सवाल ही पूछ नहीं सकते? This is also a knowledge sharing session. मैं अगर कुछ बोल के चली जाऊं, हो सकता है आप में बहुत सारे में से अग्री ना करें. यू मे बी डिसअग्री कि आपकी कुछ और ओपिनियन हो सकती है, मेरी एजुकेशन को लेकर, पढ़ाने को लेकर कुछ और ओपिनियन हो सकती है, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन. उसमें कोई डिसएग्रीमेंट वाला, आर्गुमेंट वाला कोई बात नहीं है. बट एटलीस्ट देयर शुड बी अ शेयरिंग, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, सो दैट जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं,
जो आप अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं, आप बच्चों से मिलते हैं, आपने जो ऑब्जर्व किया आप मेरे साथ शेयर करो, एंड देन टुगेदर able to make a list what is the best practice, right? So the same can be done. So my dear educators, today we are talking about differentiated instruction. Whatever we are teaching to our students, that is all about इंस्ट्रक्शन. पढ़ाते हैं चाहे हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, लेक्चर मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड विजिट्स, राइट, वर्चुअल ट्रिप्स, नंबर ऑफ एक्टिविटीज वी डू प्लान फॉर आवर चिल्ड्रन, बट वी वांट टू हैव ओनली वन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर ऑल. अच्छा, आप में से सिंड्रेला की स्टोरी बच्चों को पढ़ा, प्राइमरी क्लासेस के टीचर है ना, तो सिंड्रेला की स्टोरी आती होगी किसी को? थोड़ी सी बता दो अपने लफ्जों में. एनीवन? सुनाई होगी, किसी ने दिखाई होगी वीडियो पर बच्चों को? थोड़ा सा मेरे को बताइए जरा. आई वांट टू आस्क यू ऑल. एनीवन? कुछ एक सेंटेंसेस में बताइए सिंड्रेला कौन थी, क्या हुआ था, बस थोड़ा सा बता दीजिए. अ फ्यू सेंटेंसेस. फेरी टेल्स बताते हैं बच्चों को, फोक टेल्स सुनाते हैं. कौन आएगा, बता दो जल्दी से. जितने जल्दी आओगे उतने जल्दी आगे और नया कुछ सीखेंगे. ऐसा ही मैं बच्चों को पढ़ाने ना, कहानियों से थोड़ा कनेक्ट करके याद रहेगा, अदरवाइज तो सब भूल जाएंगे. आपको याद ही नहीं रहेगा नहीं तो सेशन के एंड में हमने क्या सीखा, क्या हमने डिस्कस किया. यस, कौन आएगा? आपस में डिस्कशन हो रही, कौन जाएगा? आजो आजो, प्लीज कम फॉरवर्ड. या गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग. सिंड्रेला मैम एक बहुत गरीब घर की थी. उसके पापा आई थिंक बाहर चले जाते हैं, तो उसकी सौतेली माँ थी और उसकी भी 2 बेटियां थी. तो वो सिंड्रेला के साथ मतलब पूरी उसकी जो मदर वाली फीलिंग है वो मतलब अलग रखती थी बच्चों के साथ, क्योंकि उसकी स्टेप मदर थी. तो जितना प्यार वो अपनी बेटियों को देती थी वो उतना उसको नहीं दे पाती थी. इवन कि उसको बोलती थी कि घर का सारा काम कर, तो वो उससे सारा काम करवाती थी, लेकिन उसको अंदर बंद करके बैठती थी कि बाहर भी नहीं उसको घूमने देती थी. तो बाकी अपनी जो बेटियां हैं उसकी 2, उसको उसने पूरी फ्रीडम दी हुई थी. हाँ, तो उसको उतना काम शाम भी नहीं कराते. तो सिंड्रेला फिर बाहर एक बार निकलती है, उसके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं. तो एक बार बाहर निकलती है तो उसको एक राजकुमार मिलता है. राजकुमार के साथ उसकी फ्रेंडशिप होती है, तो उसको नहीं पता होता कि वो राजकुमार है. तो फ्रेंडशिप होती है बाद में. तो फिर वो उसके जाती है, क्या बोलते, उसको महल में जाती है उसके. फिर वहां पता चलता है कि ये राजा है. फिर वो राजे का बेटा उसको ढूंढने के लिए आता है लास्ट में. नहीं, वो एक शायद जश्न होता है वहां पे, लाइक एक पार्टी शार्टी होती है. तो वहां पे सबको इनवाइट किया होता है क्योंकि राजे के बेटे ने शादी करनी थी. तो पूरे मतलब मोहल्ले में, पूरे गांव में सबको बुलाया होता है. फिर वो सिंड्रेला भी छुपके से चली जाती है पार्टी में, लेकिन उसको अलाउ नहीं किया होता उसकी स्टेप मदर ने. तो वो खुद से चली जाती है वहां पे. तो अच्छे से ड्रेसअप किया होता है, शूज वगैरह उसने ऐसे बाय किए होते हैं, लेकिन कोई उसको पहचान नहीं सकता, वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है. तो राजे के बेटे को वो दिख जाती है, तो उसके साथ डांस वगैरह वो करते हैं. फिर वो जल्दी से चली जाती है क्योंकि उसको एक परी मिली थी. परी ने उसको कहा था कि मैं तुम्हें ड्रेस देती हूँ, तुम्हें शू देती हूँ, तुम्हें 12 बजे से पहले आ जाना है, ठीक है. तो फिर वो आ जाती है. आते आते उसका शू गिर जाता है. फिर राजे के बेटे को शू मिल जाता है. तो वो फिर उसको उसी के शू की उसकी तलाश करता है, उसको वो शू लेके. तो लास्ट में फिर वो खुद जाता है उसके घर पे. तो वो छुपा के रखी होती है बेटी को. तो वो कहीं ना कहीं उसको ढूंढ के लास्ट में वो पहना लेता है. उसके साथ शादी हो जाती है. आपका नाम? रोमिका. रोमिका. So give a huge round of applause to रोमिका. See, ऐसे ही हम अपने बच्चों को जब बोलते हैं स्टोरी नरेट करो, थोड़ा सा ट्वीक करके, थोड़ा सा बदल के, ठीक है, हम कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके उसको अच्छे तरीके से पर प्रेजेंट करते हैं. तो इसमें जो है एक चीज, वो उनका जब शू रह गया था, तो शू वहां पर रह गया, तो शू सबको ट्राई कराया गया, उसकी सिस्टर्स को भी, पूरे शहर में, और लड़कियों को भी जो उस एज की होंगी. तो किसी को वो शू फिट नहीं आया था. वो जो सैंडल, वो शू किसी को पूरा नहीं आया, राइट. तो वो फाइनली किसको फिट आया?
सिंड्रेला को। तो हम क्या करते हैं, वो शू तो सिर्फ सिंड्रेला को फिट आया उसी को, बट हम लोग ये समझ नहीं पाते। हम क्या कहते हैं, वन साइज फिट्स ऑल। हम पढ़ाने का तरीका, सब बच्चे 40 हैं हमारे क्लास में, 40 के 40 हम सोचेंगे एक ही तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम तो वो जूता, वो शूज, वो सैंडल सभी को एक ही साइज वाला पहनाने की कोशिश कर। Isn't it? महाभारत का थोड़ा सा एक एपिसोड याद है किसी को? तो मैं उसके साथ भी इंटरेक्ट करूंगी, नहीं तो मैं ही आपको बताती हूँ। They must not be knowing, no, Mahabharat. नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, सुना तो होगा। लेट्स सी। It's a different community, ना मैम वहाँ पे। ओके ओके, गुरु द्रोण के बारे में नाम सुना है? The गुरु religion is द्रोण totally मैं तभी different, कनेक्ट so I करके doubt बताती हूँ। यस, सुना है, गुड। ओके, वो जो अब आप देखिए कि गुरु द्रोण, गुरु, हम भी गुरु, टीचर, राइट? हम कहना तो शुरू कर देते हैं कि आजकल टीचर्स की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, पहले हुआ करती थी, राइट? कहाँ है वो अर्जुन जैसे शिष्य, है ना? पर अगर हम सोचें, गुरु द्रोण के पास सारे के सारे कौरव पांडव सब शिक्षा लेने के लिए आए। वो किस चीज के लिए उनको तैयार कर रहे थे? युद्ध के लिए। क्षत्रिय थे उस समय, जो भी है, कि आपको युद्ध के लिए तैयार होना है, शिक्षा देनी है। अब बताइए कि अर्जुन तो तीर चला रहा, सक्षम हो गया उसमें, अगर भीम से वो तीर नहीं चला, क्या उसको स्कूल से निकाल दिया गया? क्या उसको बोला गया कि यू आर नॉट एलिजिबल टू बी देयर इन द वॉर? नहीं, वो गदा चलाते थे, कोई नेजा चला रहा है, कोई भाला चला रहा है, कोई तीर चला रहा है, बट सब अपने अपने तरीके से वो युद्ध में आगे आ रहे हैं उसको करने के लिए। दे ऑल वर द बेस्ट व्हाटएवर दे वर यूजिंग। दुर्योधन, अर्जुन, दे वर यूजिंग, वो गदा चलाने में सक्षम थे। अर्जुन तीर चलाता था, कर्ण तीर चलाता था। तो सबके अपने अपने क्या है, कैपेबिलिटीज, अपना अपना टैलेंट, अपना अपना हुनर। हर एक ने अपने जो सीखा हुआ हुनर है, अपना टैलेंट है, उसके द्वारा बहुत बेहतर अपना प्रदर्शन किया है। उन्होंने किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया, बट एटलीस्ट क्या किया, ठीक है ये तीर चला सकता है तो ही शुड वर्क ऑन दैट स्किल, ये गदा चला सकता है तो ही शुड फोकस ऑन दैट स्किल। हमारे जो बच्चे हैं, कोई रीडिंग स्किल्स उनकी अच्छी, कोई ओरेटरी स्किल में बच्चा बहुत अच्छा है, कोई अच्छे राइटर बन सकते हैं, दे आर वेरी गुड राइटर्स, कोई अच्छे ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं, राइट? ये क्या है, सारा मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का कॉन्सेप्ट जो हम अभी अब बताते हैं और जो हमारे महाभारत में कब से। यहाँ पर हम कहती हूँ, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट एनी रिलीजियस स्टोरीज, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट कि अगर हम इसको चाहे रियल माने चाहे फिक्टिशियस माने, मेरा यहाँ पे कोई डिबेट करने का वो नहीं लॉजिक। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम पहले भी अगर हम बात करते आए हैं कि स्टूडेंट्स को इस तरीके से उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अगर उनके टैलेंट को देखकर परखकर उसके अकॉर्डिंगली उनको तराशा जाए और ऐसे ही उनको स्कैफोल्ड करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें बीइंग अ टीचर, कि वो बच्चा अपने फील्ड में बेहतर करे। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाउ, है ना? हमने बच्चों को होमवर्क दिया करने के लिए, अगर कोई बच्चा उसको माइंड में बना के लाना चाहता है, कोई बच्चा उसको एक पैराग्राफ लिखना चाहता है, वन चाइल्ड इज वेरी गुड एट स्पोकन स्किल्स, वो उसको रिकॉर्ड करके पॉडकास्ट के फॉर्म में शेयर करना चाहता है, एंड वन इज अ वेरी गुड एक्टर, वो रिकॉर्ड करके लाना चाहता है। Such options to our students for this presentation. We always focus on reading, कि ऐसे लगा दिया बुक पढ़नी है, यही लिखना है। Give them the wings to fly. पर तो हम उनके पहले ही काट देते हैं, कहां से उड़ेंगे? उनके हाथों में अच्छे भले वो हैं, उनके हाथों में हम बैसाखियां पकड़ा देते कि इनके सहारे चलो, ये किताब है, यही पढ़ना है, बस यही आपके लिए सब कुछ है। So let us give them a chance to be creative, to explore something, right? So that's really important. Okay,
So we are not here to talk about any community, any religion, but हम सिर्फ एक इंस्टेंस दे रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों को अलग से उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए आगे उनको और बढ़ाना है. ठीक है. So now what's arts integration? Pick up any idea. Thank you, ma'am. Give a huge round of applause to Romika, ma'am. Thank you. So you need to pick up any topic from any subject and then collaborate with the arts teachers. Is there any teacher sitting here who is teaching any art form, dance, drama, music, painting, sports? Just raise your hands. I want to see how many of they are there, or you all are subject teachers. कोई टीचर आर्ट पढ़ाती है यहाँ पर जो बैठे हैं? ड्राइंग, पेंटिंग? सो यूजुअली प्राइमरी क्लासेस तक तो हम थोड़ा थोड़ा बच्चों को आर्ट फॉर्म वैसे ही सिखा देते हैं, जो आप सब्जेक्ट भी अगर कोई करा रहे हैं, साइंस है, इंग्लिश है, ड्राइंग पेंटिंग तो बताते हैं ना. यस. Okay, so let's see. If I talk about the benefits of arts integration, it fosters critical thinking skills. It fosters empowerment, connective learning. Students, they are able to connect with the real world through arts, different art forms, right? And now I ask you, if we think about, are we all artful educators? Yes, we are. I'll just show you a few slides. और उसके बाद मैं ये सवाल आपसे दोबारा पूछूंगी. Do we shape communication? We give different expressions, unique symbols to our students. We ask them to share their views, their learnings through metaphors. हम अगर उनको अपनी लैंग्वेज में ही बोलें, अपने शब्दों को प्रायवाची शब्दों से चेंज करके बताइए. पानी, जल, वारी, नीर, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप बताएंगे पानी को आप क्या क्या शब्दों के थ्रू बोल सकते हैं? ये कुछ एक तो मुझे आते हैं. जल, या हाँ. सो इस तरीके से सिर्फ एक खाली पानी को ही हम इतने शब्दों के साथ हम बोलते हैं. अगर इस तरीके से हम बच्चों की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, उनको बोलते हैं कि अलग अलग मुहावरे इसमें ऐड करें, idioms and phrases they can add into it, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है. दैट इज ऑल्सो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. किस तरीके से बात करना है, कैसे एक वर्ड को ज्यादा एम्फेसिस देना है, राइट? तो इस तरीके से एक पूरे सेंटेंस में अगर हम एक शब्द के ऊपर स्ट्रेस से सिर्फ बदलते जाएं, उसका मीनिंग ही बदल जाता है. Isn't it? जैसे हम बोलते हैं कि पंचुएशन मार्क्स, कॉमा कहीं ना कहीं फेर बदल करके लगा दिया है, उसका मीनिंग बदल जाता है. कोई एग्जाम्पल देंगे आप? एनी वन ऑफ यू, एनी एग्जाम्पल? Yes, ma'am, you can come. The lady who is sitting next to the lady who is wearing a blue dupatta. Yes. Yeah, please come forward. Morning, ma'am. Yeah, very good morning. Your name, please, first of all. Yes, my name is Bamna. Okay. जैसे एक सेंटेंस होता है, तो हम जैसे हैं, हाँ, जैसे रुको मत जाने दो, तो अगर हम बोलेंगे रुको मत जाने दो, तो अगर हम वहां पे उसके आगे आएगा पंक्चुएशन मार्क रुको मत के आगे, तो वो सेंटेंस चेंज होगा. लेकिन जब हम बोलेंगे रुको, फिर पंक्चुएशन का मार्क आएगा, फिर हम बोलेंगे जाने दो, तो वो अलग सेंटेंस, मतलब सेंटेंस एक ही हुआ, लेकिन पंक्चुएशन मार्क की वजह से वो उनका मीनिंग चेंज हो गया. वंडरफुल. सो इस तरीके से हम क्या है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल को भी अगर हम फोकस करते हैं,
राइट। अगर हम उनको बोलते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स प्रॉपर लगाएं, अपने शब्दों को चेंज करें हर बार, ब्यूटीफुल, प्रिटी, गॉर्जियस, आई मीन एक शब्द को हम दूसरी बार जब बोले तो उसको ना यूज करके हम उसका सिनोनिम यूज करें, तो वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होंगी। एक आधा कोई मुहावरा, लोकोक्ति, कोई इडियम अपनी भाषा में जो आप यहाँ पर बोलते हैं, कोई याद है आपको कुछ भी, एनीथिंग, किसी भी लोकल में भी जब हम बच्चों को कई बार घर में भी इस्तेमाल करते हो, कोई भी एक बताइए, कुछ भी याद आ रहा हो। अगर मैं बोलूं कि आज संडे के दिन आप यहाँ पर आए हैं, इट इज लाइक किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पंथ दो काज। आप आए हो स्कूल में ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, ट्रेनिंग अटेंड भी हो रही है, संडे का दिन था, हो सकता है घर बैठते अपने कोलीग से भी मिल लिया, बातचीत कर ली, एक साथ बैठकर चाय भी पी ली, हमें भी जान लिया, हमने आपको जान लिया। यहाँ तो एक नहीं, मतलब दो नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए इस चीज के। तो हम क्या है कि जब बच्चों को बोलते कि किस तरीके से गागर में सागर को भरना है, थोड़े से शब्दों का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी बात कह देना है, ये भी तो एक कम्युनिकेशन का स्किल। हम कई बार कहते बी ब्रीफ, उसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी आधी बात छोड़ दें, उसका मतलब तो ये यही है कि मतलब इतने चंद शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी पूरी बात ऐसे समझा दे, वो इंप्रेसिव भी लगता है। समय नहीं है ना सबके पास आजकल, बहुत जिंदगी तेज दौड़ रही है ना, पूरी इतनी लंबी कहानी सुनने का टाइम है, ठीक है। तो आप देखिए, तभी तो संडे के दिन भी टाइम निकाल कर आए हैं अभी, है ना। वंडरफुल, थैंक यू। तो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स of our students. We foster creativity through art. Participation in each of the arts as creators, performers, and audience enable individuals to discover and develop their own capacity. आप बताइए, जितना भी आपको घर में बहुत बार क्या होता है कि दुख होता है, परेशानी होती है, अपनी सारे दुख परेशानियां हम चेहरे पे अपना मास्क लगाते आते हैं स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों के आगे तो उदास वाला चेहरा नहीं लेकर आते। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है, बहुत बार जल्दी जल्दी में कई बार इतने काम है, खाना भी बना पाए ना उसमें खाया, कोई कई बार फाइनेंशियल भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। बच्चों के आगे तो ये सब कुछ शो नहीं करते ना, उनके साथ में तो सुबह पता है कि साथ में क्लास में जाना, एक बड़ी सी स्माइल लेकर जाते हैं। क्या हम एक्टर्स नहीं है ना। तो एक आर्टिस्ट क्या होता है, एक्टर। आर्टफुल टीचर क्या होता है, एक्टर। वी ऑल आर एक्टर्स। कम्युनिकेशन की बात करें, अब आप बताइए, मेरे साथ बात कर रहे हैं, आपका लहजा कुछ और है, आप अपनी क्लास में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, अगर प्राइमरी बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उनसे आप बात इस तरीके से तो नहीं करते ना, उन आपकी टोन ही चेंज हो जाती है ना। कभी उनको स्टोरी सुनाते हैं, कभी उनको एनेक्ट करके बताते हैं, राइम के लिए गाते हैं, डांस भी कर लेते हैं, चाहे वैसे नहीं किया हो, बच्चों के सामने हम थोड़ा थोड़ा वो भी कर लेते हैं, सिखाने के लिए कि उनको एंगेज करने के लिए। Yes, we are artful educators. This is art, right? Okay. And then art offers connections. अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं, they exchange their ideas, they share their thoughts, they know about each other's culture. इससे हम एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं बच्चों, कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं, हम वहां क्या अपना अलग कल्चर है, हम उसके अकॉर्डिंगली हमारा पहरावा है, हमारी बोली है, हमारा खान पान है, दैट कैन बी डिफरेंट, लेट्स अप्रिशिएट। उसके बेसिस पर हम किसी में डिफरेंशिएशन नहीं करें। सो आर्ट क्या है, हमारे कनेक्शंस को बढ़ाता है और उसे बेहतर बनाता है। आर्ट्स ऑफर्स वेलबींग, जब हम स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, एंड वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स एज क्रिएटर्स, परफॉर्मर्स, ऑडियंस, that enhances their physical and emotional well-being. Arts promote community engagement. The arts provide means for individuals to collaborate and connect with others.
हम देखिए कम्युनिटी एंगेजमेंट होता है, जब दूसरों के साथ हम इनेक्ट करते हैं, बच्चों को फील्ड विजिट के लिए लेकर जाते हैं, गेस्ट स्पीकर्स को बुलाते हैं, बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके कम्युनिटी उनके कल्चर के बारे में सीखते हैं, उनका दायरा बढ़ता है. सो दैट्स अनदर बेनिफिट ऑफ आर्ट्स. सो आर्ट एनहांसेस लर्निंग. Even the research says there are number of papers that have been published, and even let me tell you, the research says the students who study through arts, they perform better than the students who study without arts. So if we talk about, like, art gives us new possibilities to think. So all the children, they should have the opportunity to release their imagination, to imagine the new possibilities. This is what we want our students to explore. We don't know the world that our students will encounter tomorrow. क्या हमें पता है? कोविड के बारे में किसी को पता था? We were not prepared. We don't know. आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को कैसे उन्होंने जॉब्स करनी, कैसा बिजनेस करना है, दे कैन बी एंटरप्रेन्योर्स, क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी दुनिया की, क्या जरूरतें रहेंगी. एकदम से अब एआई के इतने सारे टूल्स आ गए, फ्लड आ गया. कई बार किसी को लगता है कि पता नहीं हमारी जॉब सिक्योर है कि नहीं. ऑलवेज देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. कल कोई और नया टूल ना आ जाए. कल शायद मैं क्लासरूम में जाऊं तो वहां पे कोई रोबो ना खड़ा हो पढ़ाते हुए, बच्चों को बोलेंगे हाँ जी आप जाइए, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड. कुछ ना कुछ सवाल, कुछ ना कुछ प्रश्न आते रहते हैं. सो वी नीड टू प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स टू बी रिजिलियंट. वो एक्सप्लोर करेंगे ना, हमारा दायरा उतना है जो हमने एक्सप्लोर किया, जो हमने किसी चीज के साथ इंटरेक्ट किया, जो हमने प्रॉब्लम्स को फेस किया. अगर उनके पास विंग्स होंगे ना, तो अपने आप वो अपनी उड़ान भर लेंगे. एटलीस्ट हम उनको फ्रीडम दें, राइट, कि सोचने की. So if I talk about it, opens possibilities. Arts integration is more than using the arts to teach academic subject and seeing it as a tool or a method, right? ये क्या होना चाहिए? आर्ट इंटीग्रेशन सारे सब्जेक्ट्स में होना चाहिए. एक स्टैंड अलोन आर्ट टीचर ड्राइंग करा के नहीं चला जाए, म्यूजिक वाला टीचर अपना म्यूजिक सिखा कर नहीं चला जाए. I'll show you some of the examples also. We will be talking about transdisciplinary approach. मीन्स जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, उसके थ्रू जब हमारी एक नई थिंकिंग निकलती है जिससे हम रियल वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच. इट गिव्स वे टू एक्सप्रेशन. देखिए, लुक एट द इमेजेस. हर एक बच्चे का एक्सप्रेशन का तरीका डिफरेंट है. कोई खेल कर करना चाहता है, कोई नेचर के थ्रू करना चाहता है, कोई पढ़ के करना चाहता है, कोई एक्ट करना चाहता है. एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी इज डिफरेंट. ये आपको तो पता होगा, दोज हु आर हैव स्टडीड साइंस और अदरवाइज आल्सो, कि हमारे जो ब्रेन है उसमें दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. राइट, तो ये हमारे दो हेमिस्फीयर होते हैं. हम क्या सोचते हैं, ये क्रिएटिव है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल प्रोसेसेस के साथ एसोसिएटेड, राइट इज एसोसिएटेड विद क्रिएटिव थिंकिंग. हम सोच रहे हैं यादा क्रिएटिव है, इसका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव है, ये लॉजिकल है, इसका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव है. अगर इसको पूरी तरह से स्टडी करें, ये बोथ द हेमिस्फीयर दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो हमें एक को ही फोस्टर नहीं करना है, दोनों को ही हमें नरिश करना. अगर हमें नंबर्स पता है सपोज, तो हम उसको विजुअलाइज भी करना चाहिए. दैट विल एनहांस द लर्निंग. लॉजिकल क्रिएटिविटी साथ में इमेजिनेशन. So they both the hemisphere, they are dependent on each other. Let's nourish both of them because they are dependent on each other. So let's stimulate both the hemisphere. ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए रीडिंग मटेरियल भी दें, चैलेंजिंग भी दें, आर्ट फॉर्म भी दें. हम कई बार क्या होता है, जो बच्चे साइंस से स्टडी करते हैं, सिर्फ किताबें पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आर्ट फॉर्म से आपको क्या लेना देना है. वो तो आर्ट वाले स्टूडेंट्स करेंगे, वो तो पेंटिंग वाले करेंगे, म्यूजिक डांस वाले करेंगे, आप सिर्फ ये पढ़ो. अगर उनको आर्ट के थ्रू पढ़ाया जाए
तो उनका जो लॉजिकल ब्रेन है वो बहुत ज्यादा और बेहतर वर्क करेगा, राइट? सो this is actually a circular by CBSE related to arts and culture, where we have been talking about like arts to be integrated. So I'll just move directly to the different activities. So there are a few points that have been listed in the circular, like arts as a subject to be taught at all stages. We need to promote our country's heritage, craft and all, right, from all the fields, and art to be taught to all the students at all the ages and stages. And there are number of manuals, they are available on the internet, you can download, you can check different activities that you can do in the classes for art integrated learning. Now there are other manuals also that have been released recently this year by CBSE. You can also download these resources, Art Integrated Learning Book for classes 1st to 5th. And next is for 6th to 8th. You can download and get it done, and different activities. See, all these activities that are here in this graphic organizer, we will be talking about them in detail, like role plays, video making, photography, slideshows, paper quilling, jewelry making, dance performance, sculpture, sketching. और ये सबको देखकर लगता है कि सब कुछ कौन कराएगा, हमने तो आता नहीं है, क्या हम दोबारा सीखने के लिए जाएं? No, no, I'll show you. See, if you have a wonderful art of writing, जिसको भी आता है, लिखते हैं हम, बहुत अच्छी लिखाई होती है, अगर उसको क्रिएटिव वे में लिखा जाए, कैलीग्राफी, दैट इज ऑल्सो आर्ट फॉर्म. बच्चों को वो लिखना सिखाएं, इसकी पता कितनी इंपॉर्टेंस. मिलते नहीं है अच्छे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग वाले. बच्चे कहते हैं कंप्यूटर का जमाना है, हम तो टाइप ही कर लेंगे, हैंड राइटिंग कौन देखता है ना? तो ये चीजें बच्चों में अगर हम शुरू से राइट फ्रॉम एन अर्ली एज, प्राइमरी क्लासेस से बिल्ड ऑन करें कि किस तरीके से हमें आर्ट फॉर्म के थ्रू बच्चों को सिखाना और पढ़ाना है. एंड देन स्केचिंग, ये सारी प्रिंटिंग कंप्यूटर में ही डिजाइन करें. कंप्यूटर ग्राफिक्स, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स वहां पर भी हो सकते हैं जिसको कंप्यूटर अच्छा लगता है. क्ले मोल्डिंग using different materials, it can be twigs, branches, soft stones, pottery and clay, like these can be done. And here I have written tie and dye, batik, block printing. आपके वहां की जो famous art forms हैं, क्लोथ पर प्रिंटिंग होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, छोटी छोटी वो चीजें अगर हम बच्चों को वो सिखाएं, बहुत लार्ज स्केल पर नहीं कह रही कि वोकेशन में चले जाएं, छोटे छोटे पर प्राइमरी के बच्चे, वोकेशनल हम शुरू करते हैं 6th क्लास, एटलीस्ट वो थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाए उसके बारे में. नेक्स्ट, we'll be able to relate. Can you see what is happening in the picture? And we all are doing this also in our classes. Yeah. Here, story, puppets. They all creating puppets with the popsicle. And maybe already available puppets also, ready-made puppets too. They are narrating stories through that. And then arts exhibitions. जो बच्चे आपका छोटा छोटा सा कुछ बनाएंगे, उसको आप ईयर एंड पर या 6 महीने में एक बार एक अपने स्कूल में कैसे एग्जीबिशन लगाकर पेरेंट्स को इनवाइट करिए कि क्या आपके बच्चों का काम है, उसी को आप इवन यू कैन गो हैड पे, ये जो स्किल ही है बच्चों की जो डिफरेंट आपने बिल्ड की हैं, इसकी एग्जीबिशन लगाकर, एंड इवन you can invite the parents also, or maybe outsider, maybe some other schools also, right? The same can be done. Folk songs, patriotic songs, and even reproducing the artwork printed in the textbook books in some another form. आपकी बुक में कोई कहानी लिखी है, क्या बच्चों को बोलेंगे इसको कविता के फॉर्म में लिखो? That is also art form. कहानी लिखी है, उसका एंड ट्वीक कर दो, बच्चे की क्रिएटिविटी है. कहानी लिखी है, उसको अलग अलग स्टोरी सेट में उसको एक कॉमिक स्ट्रिप में बना के लेके आइए. दैट इज ऑल्सो आर्ट फॉर्म. और बच्चों को यूनिक मेथड मिलता है पढ़ने का. Ask them to listen to any of the programs.
मोबाइल है बच्चों के पास, आप छीन नहीं सकते, पर एटलीस्ट उनको बता तो सकते हैं कि इसको किस तरीके से यूज करना. Share with them some useful videos. Ask them to write the reviews about that particular video. That will enhance their creativity, critical thinking, and they'll be able to write about it, and that will foster their creativity, critical thinking, writing skills. Right? So these kinds of activities can be done. Creative drama, mimes, one act play, nukkad natak, play scripts, episodes and happening in day-to-day life situations. Episodes from stories, from textbooks. आपके जो पढ़ा रहे हो, आपको कई बार लगे कि ये सब चीजें कराएंगे, हमारा सिलेबस कौन पूरा कराएगा. जो आपके सिलेबस की बुक्स हैं, आप उसी को यूज करके बच्चों को ये सिखाइए कि उसका एनेक्टमेंट करना है. कैन यू सी हियर इन द पिक्चर? What are they doing? They are enacting what is there in the textbook. जो आपके बच्चे डायलॉग फॉर्म में पढ़ते हैं, उसी को ये असेंबली में एनेक्ट कर रहे हैं. राइट? Next, dance and movement. Like dance is a form of non-verbal communication. बिना बातचीत के हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? सिंबल्स के थ्रू, डांस के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू. डांस मीन्स कम्युनिकेशन. ट्राइबल हो, फोक डांसेस हो, कोई भी, जो भी आपको डांस फॉर्म्स पता है, उसको अपने सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके करिए. These students, they are there. Can you see them in the pictures? They are presenting the dances of the different states of our country under the project Ek Bharat Shresth Bharat. Role plays. We can ask our students to present role plays by maybe just painting their faces, maybe by dressing it up. The same can be done. And then again, sculpture. Exhibitions for the sculptures. Jewelry making. Quilling. This is a vocational skill. This we can teach to our students. Photography. All over, wherever you are residing, outside somewhere, or maybe at home somewhere, ask the children to capture the pictures. That can also be used as art form in any kind of activity. Culinary art, particular cuisine of a particular state. Let them start from their own state. Why it is always mama, papa, or anyone who has to make something, cook something? Why can't they do it themselves? They'll be very creative. Let us do the same in the school, and that can be also related to their subject. Can you guess which class is going on over here? Yeah? Recipes, cuisine class, home science. No? Somebody, what did you say? Sorry, I could not get your voice. Can you be a bit louder? This is Hindi class going on. हिंदी की क्लास है और पाठ चल रहा है खान पान की बदलती तस्वीर. हिंदी की टीचर है और आपको शायद इसको देख के पहले लगा होगा, खाने पीने को देख के शायद होम साइंस का कोई क्लब चल रहा है. फिर आपने मैप देखा होगा तो आपको लगा होगा सोशल साइंस की क्लास है, स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. हिंदी टीचर, खाना तो सब बच्चे स्कूल में लेकर आएंगे ना. अगर हम उनको बोलेंगे कि आप अलग अलग जगह का या अलग अलग वैरायटी का आप खाना लेकर आइए, एक ही जगह का भी, अगर आप अपने एरिया के बारे में भी पढ़ा रहे हो तो यहाँ के कौन कौन से फेमस फूड हैं, और ये बच्चे लाए हैं ऑल ओवर
पूरे भारत में अलग अलग जगह का जो भी उनके घर पर बन सकता है खाना, वो लंच में लेकर आए हैं। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये वाला जो खाना है ये कौन सी स्टेट का है। So she being a class teacher doing the same during the lunch time, ताकि 5 मिनट उनसे पहले इंटरेक्ट करके बाकी के 15 मिनट they'll enjoy their food, but at least some kind of activity can be done. So उस चीज के लिए कोई अलग से कोई पीरियड डेडिकेटेड रखने की जरूरत नहीं है। एनी टाइम द सेम कैन बी डन आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। मन में सवालों की कब करे, कैसे करे, कहाँ करे। अच्छा, ये कौन सी क्लास चल रही है? यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चे, आपको क्या लग रहा होगा? एनी गेसेस? अरे नो आंसर इज राइट और रॉन्ग। या आप थोड़ा पास आकर बोलेंगे तो आवाज सुनाई देगा मुझे। मैम ये स्टूडेंट्स बैलून का यूज करके एक पोएट्री बना रहे हैं, मतलब बाउल बन जाएगा इससे। हाँ, बोल बन जाएगा इससे। और इससे क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? कौन सी क्लास है? आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास होगी क्या? कौन सी क्लास हो सकती है? एनी गैसेस? आर्ट में करते हैं क्या? ये आर्ट टीचर होगी इनकी, क्राफ्ट टीचर होगी जो करा रही होगी। कुछ भी सोचकर बताइए। क्राफ्टिंग की क्लास चल रही है। हाँ, ये इनकी वैल्यू एजुकेशन की टीचर हैं जो इनको ये करके ये बताना चाह रही हैं। जैसे आपने बताया कि बोल बन जाता है एक, वो उनको ये बता रही है कि हम जैसी सिचुएशन में रहते हैं, जैसी कंपनी में रहते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर हमने बैलून के ऊपर ये क्ले लगाकर उसको सुखा दिया, फिर बैलून को फोड़ दिया, उसने उसका आकार ले लिया, शेप ले ली, कि हम वी आर एज द कंपनी वी कीप। तो वो वैल्यू एजुकेशन को इस तरीके से बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग से सिखा रही है। फिर उनको बोला कि आप किसी और शेप से बाद में कुछ और ट्राई करो। तो दैट इज ऑल्सो आर्ट्स इंटीग्रेशन। थैंक यू। यू आर रोमिका और भूमिका? भूमिका। भूमिका, okay. So this we all have been doing, collecting leaves, leaf art, right? करा होगा आपने भी अपनी क्लास में। दैट इज ऑल्सो आर्ट फॉर्म। और ये जरूरी नहीं कि आपके ईवीएस के टीचर नहीं कराना। यू आर टॉकिंग अबाउट आपकी एक तोता मैना की कोई स्टोरी आ रही है, कोई पोम आ रही है, कोई कुछ आ रहा है, आप उससे रिलेटेड बच्चों को बोलेंगे कि कैसे करना है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी कर लेंगे, लीव्स कलेक्ट करके उस फॉर्म में आप लगा भी देंगे। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है, कुछ है, सब इसके थ्रू वो बना रहे हैं, कनेक्टिंग इट विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और ये सिर्फ लीफ कलेक्ट करने तक की बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड, सी फर्स्ट दे हैव विजिटेड द गार्डन, they have selected, they have collected and sorted the different leaves, and then they made the project with details, and then they submitted the final project. So thinking skills, they are also being developed. So visits to the museums, creating documentaries, that is also art form, but that should be followed by reflection sheets. कहीं बच्चों को अगर आप यहाँ पर लेकर गए हैं, ये गया यहाँ पर ईंटों का भट्ठा, ही है, ईंटें बन रही हैं, सिर्फ देख के आ जाएंगे तो लर्निंग नहीं होगी। कहीं पर भी विजिट कराने जाते हैं, पहले अगर बच्चों को हम ऐसे एक रिफ्लेक्शन शीट देते हैं, वी हैव गिवन देम अ फ्यू क्वेश्चंस, हम उनको बता दें कि हम यहाँ पर जाएंगे, विजिट करेंगे, आप इसके बारे में लिखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, वहां पे क्या होता होगा, ईंटें कैसे बनती होंगी। सिंपल सी एग्जाम्पल देके बता रहे, ईंटें कैसे बनती होंगी, क्या टेम्परेचर होगा, कैसे रखते होंगे, कितने लोग वहां पर काम करते होंगे। उनसे पूछिए आप क्या इमेजिन करते, फिर वो वहां पर विजिट करके आएंगे, फिर उनको वही शीट दोबारा से दीजिए ब्लैंक, उनको बोलिए अब आप भरिए आपने क्या देखा।
फिर उसके बाद अपने दोनों की दोनों शीट्स को दे विल कंपेयर, मेरी लर्निंग पहले कहाँ थी, अभी मेरी लर्निंग कहाँ गई। आपके बताने की जरूरत नहीं रहेगी। They'll be able to compare and contrast and they'll be able to learn कि yes, this is how it is being done. ये मैंने सीखा आज, मैंने ये सोचा था, but now I have changed my thinking, right? So at the site the same can be done, post visit the same can be done, before and after visit जो भी आप reflection sheet बनाते हैं वो तब कर सकते हैं. Now what is this happening? साइंस कौन कौन पढ़ाता है? ईवीएस साइंस कौन कौन पढ़ाता है? जस्ट हाथ खड़े करेंगे. ओके, सो बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ाते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में सिखाते हैं बच्चों को, राइट? सो इफ वी गिव देम अ होमवर्क, राइट अबाउट बैलेंस डाइट, what are the components of a balanced diet, what are the nutrients over there, so that becomes a traditional form of question, और सबका आंसर सेम होगा ना? वो जो लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, सबका आंसर सेम होगा. तो कहाँ, जब जहां सेम है, सिमिलैरिटी आ गई, वहां क्रिएटिविटी नहीं. अगर मैं बोलूं कि घर जाकर अपना फ्रिज ओपन करो, उसमें जो जो सामान है उसकी लिस्ट बनाओ, फिर उसको आप हेल्दी अनहेल्दी कैटेगरी में डिवाइड करो, उसके बाद उनमें लिखो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, रफेज है, क्या है. फिर आप उसमें टोटल करके बताओ कि आप इसमें से क्या क्या खा रहे हो, आपके अल्टीमेटली इसमें आपको क्या क्या आपको फायदा हो रहा है. फैट ले रहे हैं वो कितना जरूरी है और आप कितना ले रहे हैं, क्या क्या आपने फ्रिज में रखा हुआ है, क्या उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, या ओनली यू हैव पुट डेयरी प्रोडक्ट्स. तो इसमें बताओ कि क्या सबका आंसर सेम होगा या सबका डिफरेंट होगा. डिफरेंट होगा. Yes, सबका आंसर डिफरेंट होगा. So that's called uniqueness or creativity. See, integrate dance also. See, angles, learning through the postures of yoga. So we need to find some creative ways of teaching these subjects to our students, because most of the times they don't feel interested, because for them these subjects are very difficult to understand and grasp. So we need to coordinate with the music teachers, dance teachers, and then we'll be able to teach the same. So there are a number of songs available on the internet too. Whether you are teaching science, cell song, whether you are teaching about continents, whether you are teaching a language. How many of you teach language? English? Yeah. चलो पहले English ही चलाती हूँ. Jack Cartman, Kids Music Channel. When two vowels go walking, the first one does the talking. The second vowel you see, but you don't say. When two vowels go walking, the first one does the talking. The second vowel stays quiet, and the first one says its name. When two vowels go walking, sometimes the first vowel does the talking. When two vowels go walking, sometimes the first vowel does the talking. They walk together in words like this. The A, I in rain are vowels. When you say the word rain, you hear the A vowel sound. Rain, rain, rain. The E, A in beat are vowels. When you say the word beat, you hear the E vowel sound. Beat. So what did you observe? I mean, will the students be feeling engaged through such videos? And even if you ask them to perform and they are singing it on their own,
they'll always remember that for some vowels, there is always like the first vowel go talking and the second vowel remains silent. But sometimes, when it is just sometimes, it's not always, right? It is like I have not played it full. Because when we talk about I and E, there are some different rules for that also. Yes, ma'am, you want to say something? No, ma'am. Okay. So there are some different rules. So sometimes it is sometimes, and then it's every time. So if social sciences, Hopscotch! In Panama, wide open. so they don't forget when you teach them. Just a minute. So when you teach them through songs, they enjoy it and they don't forget it. See what is happening over here. What is happening here in the second image? Can you tell me in the center one, what is happening? What are the children doing? Which class it is? Any guesses? They're measuring the height. Mathematics class must be going on. But let me tell you, this measuring tape is not that they have bought from the market. Rather, they have made it themselves using a satin ribbon. So that is art form. Whatever they are learning, first they are creating it themselves. And now they are checking whether whatever they have made it, whether it is correct or not. So such kinds of activities can be done, planned for the students. If we talk about mask making, that is also art form. They are creating the games for themselves. Always we go ahead with sorting activities. Whether it is sciences, we are talking about carnivores, herbivores, omnivores. We are talking about biodegradable, non-biodegradable substances. Whether we are talking about parts of speech, maybe we are talking about ecosystems in social science. Maybe we are talking about numerator, denominator, different types of fractions in mathematics. Everywhere we go ahead with sorting. So the children, they have made the sorting game themselves. And they are designing different games through Scratch also. And for languages as well. So such kinds of games, you should not prepare for your students. Rather, you should ask them to go ahead with that. They'll be preparing it. Now, this is dramatization in the morning assembly. And this is puppet making activity for story narration. Talk shows can be conducted in the classes. And here it is. Gardening and designing dresses, costumes, and then performing. And if they can't design such big costumes, can they do this? Designing small dummy costumes, maybe through paper, maybe by clothes. So that is also art form.
dances of the different states. IT integration is also arts integration. आर्ट का मतलब सिर्फ खाली वो ड्राइंग पेंटिंग नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग, that is also art form. Presenting something in the form of presentations and slideshows. Look here, what sort of creativity it is. Just look here. From the name, letters of the name, now they have highlighted what all angles are over there. And what is this here in these pictures? There are different cell organelles during their cooking, baking, home science club. They have baked cakes. Pizza is also there. And that is looking like a cell organelle, mitochondria, Golgi bodies. I mean, different things are there. This is also art. They are finding the angles in the spider's web too. एक टेबल के ऊपर ही अगर सपोज आपने 4-5 ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी सेलो टेप कलरफुल चिपका के दे दी बच्चों को, इसमें तो टाइम नहीं लगता ज्यादा, कलरफुल सेलो टेप लगा दी, फिर बच्चों को बोल दिया जहां जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर आप हाईलाइट करिए कि इसमें कौन से एंगल्स हैं. they'll be finding it. और थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ट्रेडिशनल फॉर्म से, एंगल बनाओ फिर उसमें एंगल मार्क करो. पढ़ाने तो है ही हमने एंगल, पर हर वक्त कान को ऐसे नहीं पकड़ना, कई बार घुमा के भी पकड़ना पड़ता है, राइट? So ये 3D models they can make, and as you can see here in the picture, here the students, they are holding some 3D models that they have been made through 3D printer. That is also art form. सिर्फ कागज से बनाना, थर्मोकोल से बनाना ही आर्ट फॉर्म नहीं है, बट इफ यू आर डिजाइनिंग समथिंग एंड प्रिंटिंग, राइट, दैट इज ऑल्सो आर्ट फॉर्म. ये 3D प्रिंटर से उन्होंने खुद डिजाइन करके बनाए. द चाइल्ड इज होल्डिंग आर, द फर्स्ट लेटर ऑफ द चाइल्ड्स नेम. मे बी इन्होंने अलग अलग कोई बुर्ज खलीफा, ताजमहल या मतलब हवा महल, राइट, लाल किला, ऐसे अलग अलग प्रिंट करके 3D प्रिंटर के थ्रू they print and they take away as अपने घर पे लेकर जाते हैं उस डे एंड पर. 3D मॉडल्स ऐसे भी बनते हैं. they can make it. travel brochures they can make. आपके आसपास कितनी ब्यूटीफुल जगह होगी घूमने के लिए जो बच्चों को, खुद बच्चे उन्होंने विजिट किया है, लेट देम कैप्चर देयर पिक्चर्स. वहां की जगह की पिक्चर क्लिक करके उसके बारे में they'll be writing their write-ups और अपना एक ट्रेवल ब्रोशर बनाए. नहीं बनाना ऐसे, they can go ahead with the e-brochure also. छोटे छोटे बच्चे, उनकी एज के अकॉर्डिंगली such kinds of activities can be done. हम सोच रहे हैं शायद क्ले प्ले बच्चों का ही खेल है, छोटे छोटे बच्चे नर्सरी केजी वाले यूज करते हैं. ब्यूटीफुल लवली मॉडल्स कैन बी मेड बाय द स्टूडेंट्स थ्रू क्ले प्ले, और इससे लर्न भी हो जाता है उनको इजीली. अगेन इट्स अ कैलीग्राफी. इन एनी लैंग्वेज द सेम कैन बी डन, इन एनी फॉर्म द सेम कैन बी डन. दैट इज ऑल्सो आर्ट फॉर्म. दीज आर सर्टन गेम्स, लाइक आपके छोटे प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को आप सिखाते हैं ना, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, इंटरनेशनल सिस्टम, नेशनल सिस्टम ऑफ राइटिंग. तो उस तरीके से नाउ दे आर प्लेइंग मैथ्स गेम, HTO, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, थाउजेंड वगैरह, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं. इसमें दे आर प्लेइंग लाइक नंबर्स यू हैव गिवन रैंडमली. सपोज मैंने 120 नंबर दिया है बच्चे को, 120, तो जो 100 प्लेस पर खड़ा होगा एक बार शुरू में इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपको जंप करना है, सेकंड वाले को क्लैप करना है, थर्ड वाले को टैप करना है, राइट, वंस वाले को. तो उसके बाद देखेंगे वो कितना क्विकली उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि उनका नंबर कौन सा है. अगर आपने 120 बोला है तो फर्स्ट वाले को अगर क्या करना है, अगर क्लैप करना है तो वो एक बार क्लैप करेगा,
सेकंड वाले को अगर जंप करना है तो वो 2 बार जंप करेगा, थर्ड वाले को टैप करना है वो नहीं करेगा क्योंकि 0 है। तो आपको ऐसे देखना बच्चे कितनी क्विकली उसमें से अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरा कौन सा नंबर है। तो हाउ क्विकली दे आर एबल टू डिसाइड। तो हम उनकी थिंकिंग जो स्किल्स है इस तरीके से उसको और एनहांस कर सकते हैं थ्रू दीज गेम्स। दैट्स व्हाई वी से दे एनहांस वेलबींग। कॉमिक स्ट्रिप्स कैन बी डन इन, बच्चों जो अपनी किताबों में अलग अलग डायलॉग्स पढ़ रहे हैं, आपके पाठ हैं, कविताएं हैं, किसी ने कुछ कहा, तोता ने ये बोला, मैना ने ये बोला, राइट, कोई ऐसी ऐसी कहानियां हैं, कुछ है, डायलॉग एक्सचेंज हो रहा है, तो कॉमिक स्ट्रिप के थ्रू प्रेजेंट करें। दे कैन शेयर देयर ओन कॉमिक्स ऑल्सो। आई गेस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, आपके ये जो 10th 9th ये बड़ी बड़ी क्लासेस 11th 12th सबकी सारी की सारी बुक्स के लिए भी कॉमिक्स अवेलेबल, इफ यू गो एंड गूगल इट, because students, they love to read the comics and they understand it pretty well. They are so colorful also. So the same can be downloaded from the internet. They are learning about sciences, simple machines, and they have made some models, 3D models. And what is this? It's known as something new. They are known as calligrams. कहते हैं शब्द बोलते हैं। तो शब्द कैसे बोलेंगे? जब शब्द बोलकर खुद ही अपना अर्थ बताएं, आपको नहीं बताना पड़े, वो होता है वर्ड आर्ट, वो है कैलीग्राम। प्लांट्स, पत्तों, फूल पत्तों के द्वारा इसको लिखा गया है। देख के ही पता चल रहा है कि अगर किसी को पढ़ना भी नहीं आता उसको पता है समथिंग रिलेटेड टू ये पेड़ पौधों के बारे में कुछ लिखा हुआ। दैट्स कॉल्ड कैलीग्राम। अभी नेक्स्ट इमेज दिखाती हूँ, ये देखिए, फायर लिखा है कि आप देख के बताना पड़ेगा कि फायर का मतलब ऐसा होता है। शार्क, एलिफेंट, क्लॉक, रेन, बारिश हो रही है तो वो बारिश की बूंदें बनाकर ही बच्चा लिखे अगर अपनी नोटबुक में। इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स, हिंदी लैंग्वेज टीचर्स, जो भी आप अपनी लोकल भाषा भी अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा जैसे भी अगर उसमें कोई लिख रहा है किसी भी रीजनल लैंग्वेज में भी, अगर इस तरीके के फॉन्ट को यूज करके लिखा जाए, बच्चे को शब्दों के मीनिंग बेहतर क्लियर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ diagrams, graphic organizers can be made. These are all about art integration. This is another topic that can be taken in detail. One full-fledged session can be taken on design thinking. That is also art form. Puppet show, that can be done in any of the subjects. Be it a social science, be it a science. खाली languages की बात नहीं कर रही कि हमें सिर्फ कहानियां और कविताओं के लिए puppets चाहिए। Weaving and knitting can be done. Mind maps can be done. Storyboard is there. Role plays can be done. 3D artwork is there. This is the social science and they have made all the 3D models. Parliament House and all. They have presented in the assembly. Wall painting can also be done. If it is feasible in your school, in your area, the same can be done. Otherwise, at least display boards can be done. Research and documentation, that is also art form. Ek Bharat, Shresth Bharat, Bhasha Sangam, all the projects done under that, that is also art form. If you go ahead with Google Arts and Culture, you will be able to find a number of online science museums, classical museums related to history, fashion and all, and can show it to your students. It is perfectly free, right? So they are the different methods by which we can integrate art. So abhi, before we end today's session, I would like to ask you a question. The last one for today's session. What is the role of a teacher? आर्ट फॉर्म में क्या बच्चों को ही कुछ करना है? हमारा क्या रोल है? क्या हम कुछ एक सेंटेंसेस कॉइन कर सकते हैं कि हमें क्या करना है आर्ट फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए? बच्चों को क्या कर सकते हैं? What we can do? हमारा क्या रोल है? Anyone can share
एनीथिंग सो दैट वी कैन बिगिन। जो भी आपके मन में आ रहा, हो सकता है कि वो मेरे लिए एक लर्निंग हो, मैं इसमें ऐड कर लूं। एनीबडी? I guess because of this chair, I do not know whether everybody is able to see the screen or not. See, if I end this with the learning, first of all, autonomous in choosing pedagogy. हम teachers, we are autonomous. हमें पूरा freedom दिया जाता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने का तरीका खुद choose करें। आपकी क्लास में बच्चे हैं, आपसे बेहतर उन बच्चों को कोई नहीं समझता। ना मैं समझ सकती हूँ, ना आपका कोई और टीचर समझ सकता है जो उस क्लास में नहीं गया। वो आपको पता है कि आपके बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे। तो यू हैव टू सिलेक्ट द आर्ट फॉर्म। डांस है, ड्रामा है, किस तरीके से उनको पढ़ाना है वो आपको पता है, आप बेहतर जानते हैं। सो यू हैव टू चूज इट वाइजली। एंड सेकेंड इज यू नीड टू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स, एंड देन you have to guide them to take the initiative. इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं कितनी देर से, पिछला मेरे को लगता है 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया शायद। आई थॉट आई विल बी एंडिंग इट इन ओनली एन आवर। और यहाँ पर देखिए, इतनी कोशिश करके कुछ एक टीचर ही आगे आ पाए हैं स्क्रीन के आगे, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिन्होंने अपने विचार शेयर किए। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट फॉर अ टीचर कि क्लास में अगर 40 बच्चे तो होते होंगे क्लास में, या कम होते हैं? 40 होते हैं, है ना? तो क्लास में 40 के 40 बच्चों से बुलवाना कितना चैलेंजिंग है। सब जैसे नहीं कि इस बुलाते। समय टीचर्स, जैसे इस समय टीचर्स से बुलवाना है, हाँ, because they are the students, teachers are the students right now, they are the students, no? So जैसे हम बच्चों से बुलवाना challenges है, right now we are challenges getting answers from teachers. आता सब कुछ है, इनको पता सब कुछ है, बट ये नहीं बताना चाहते। ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं वो सारे बताना नहीं चाहते हैं, आता होता है उनको। या तो किसी कोई शाय होता है कि नहीं मुझे सबके सामने नहीं बोलना, या किसी को ये होता है कि कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए, या किसी को ये होता है कि अरे हमारे तो ठाठ है, कोई हमें स्पेशल 2-4 बार जब तक बुलाए ना, हम कैसे आगे चले जाएं? इतनी जल्दी थोड़ा चले जाएंगे कि एक बार किसी ने बोल दिया कि आओ बोलो। नहीं नहीं, 2-4 बार बुलाया जाएगा तब हम जाकर बोलेंगे। मैम अगर 2-3 बार बोलेंगी तो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, तो टीचर को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्लासेस में। तो वी नीड टू स्कैफोल्ड आल्सो आवर स्टूडेंट्स। जो बच्चा थोड़ा शाय फील कर रहा है, क्या उसको थोड़ा सा मोटिवेट करके आगे हम ला सकते हैं, राइट? कि बच्चा, मतलब ये बच्चा बताएगा, अभी छोटा सा एक शब्द बताएगा, बाकी मैं इसको एलैबोरेट कर दूंगी। सेंटेंस नहीं बोल पा रहा तो एटलीस्ट शुरुआत कहीं से तो करे बच्चा। तो लेट अस स्टार्ट लाइक दैट कि वी नीड टू स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड मुझे नहीं पता आप उसमें क्या कहते हैं। यहाँ पर जब ये बिल्डिंग बनती है उसको हिंदी पंजाबी में तो घोड़ी बोला जाता है, कि वो जो एक 4 सीढ़ियां होती है ना, इधर इधर चारों तरफ जुड़ती हैं, उस पर चढ़कर वो बिल्डिंग बनाते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं उसको अपनी भाषा में? लैडर। लैडर तो ये हो गया कि एक आपकी लैडर है, सीढ़ी, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक लैडर इधर है, एक लैडर इधर है, एक इधर है, 4 सीढ़ियां लगी होती है ना, ताकि वो ऊपर पेंटिंग करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो गिरे नहीं। देखा है आपने किसी ने वो ऐसा वाला स्ट्रक्चर? क्या बोलते हैं आप उसको? अच्छा, आप भी घोड़ी। अच्छा, मेरे को लगा कि शायद कुछ और बोला था। ठीक है, उसको घोड़ी बोलते हैं। किस लिए होता है कि वो कि ऊपर जाएं तो पूरा चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, बैलेंस हो गया है, राइट? तो ऐसे ही एक हमारे जो अभी बच्चे हैं, देखो छोटा सा बच्चा होता है, उसको चलना सिखाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक वॉकर लेकर आते हैं, उसके 4 या 5 भी पहिए हो सकते हैं, ठीक है, उसमें बिठाते हैं, पूरे सब तरफ से बच्चे का बैलेंस होता है। फिर वो धीरे धीरे बच्चे को जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, ट्राइसाइकिल लेके देते हैं। वो पहिए हमने कम कर दिए, कितने कर दिए? 3 पहियों वाला चलाएगा अभी बच्चा। फिर जो बाइसिकल चलाना शुरू होता है, सीधे तो नहीं बिठाते, पहले वो साइड पे सपोर्टर्स लगाते हैं, ठीक है, हाथ से पकड़ के भी चलाते हैं। फिर धीरे धीरे उसके सपोर्ट्स को हटाते हैं,
फिर बच्चा वो 2 पहिए चलना शुरू करता है तो भी थोड़ा सा सपोर्ट देकर रखते हैं। फिर जब बच्चा चलना शुरू हो जाता है तब क्या हमेशा ही उसको सपोर्टर्स पे चलाते हैं क्या? नहीं। तो हमने भी अपने बच्चों को उतना स्कैफोल्ड करना है जितनी उनको जरूरत है, ताकि वो अपने आप आगे बढ़ना शुरू करें। ये बच्चे ने अपने आप कर लिया ड्राइंग, ठीक है, अब आप करो एक्सप्लोर, खुद ड्रॉ करके लाओ, ये खुद इसका आंसर डेवलप करके लाओ। आपको सेंटेंसेस बनाने आ गए, आपको पंक्चुएशन मार्क्स आ गई, फिर भी हम बोर्ड के ऊपर सारा आंसर क्यों लिख देते? सवालों के जवाब, क्वेश्चंस के आंसर, डिफाइन दिस, व्हाई दिस इज, हाउ दिस इज, तो सारे के आंसर बोर्ड पर लिख देते। सारे कॉपी कर लो, आंसर लिख लो। क्यों लिख ले? उनको सेंटेंसेस नहीं बनाने आते। आपने उनको इतना रेडी कर दिया, सेंटेंस बनाने सिखाए, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस बता दिए। बच्चों को खुद लिखने दो। उनको पढ़ना आता है, उनको लिखना आता है, उनको ड्राफ्ट करना आना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे वो उनको छोड़ दो, उनको बांध के नहीं रखो, राइट? दैट इज कॉल्ड की स्कैफोल्डिंग। ये है, धीरे 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 अपना हाथ पीछे छुड़ाते जाओ, राइट? उंगली पकड़कर कब तक सारी जिंदगी थोड़ा ना चलाते रहे। चैलेंजेस का कैसे सामना करेंगे? ये तो नहीं कि मतलब, अगर मुझे नहीं पता यहाँ होता है कि नहीं, जब मैं पढ़ी थी तो हमें शायद ये होता था कि 4-5 स्टोरीज होती थी, 2-3 पैराग्राफ्स होते थे कि वो याद कर लिया, माय बेस्ट फ्रेंड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, 4-5 पैराग्राफ्स कर लिए, ऐसे कर लिया। तो एग्जाम में फिर हम वही याद करके चले जाते थे। मुझे अगर एप्लीकेशन लिखने के लिए ये आता है कि सिक लीव की, अर्जेंट लीव की, तो मुझे वही आता है। मुझे कोई बोल दे कि शादी पे जाना है, वो लीव ही नहीं मेरे को लिखनी आएगी, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे लीव लिखना नहीं सिखाया। मेरे टीचर ने मुझे बोला कि जब सिक लीव हो तो ये लिखना है कि 2 दिन की छुट्टी चाहिए, बुखार है। फिर पेट दर्द है तो क्या लिखूं? मेरा सर दर्द है तो क्या लिखूं? मुझे कोई बीमारी हुई है, मैं क्या लिखूं? वो सिखाया नहीं, है ना? तो वो वैसे नहीं बच्चों को करना है कि उसकी थाली में परोस के रख दिया और उनको बोला है कि बस ये खा लो। नहीं, उनको अपने आप ऐसे सक्षम बनाओ। हम तो वो चम्मच भर के भी उनके मुंह में डालने को तैयार रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर उनको लीव का लेटर लिखाना सिखा रहे हैं तो उनको बताइए कि ये स्ट्रक्चर होता है, ये फॉर्मेट होता है, इस तरीके से आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। आप सबका रीजन अलग अलग हो सकता है, अपना अपना रीजन लिख कर लाए। तो वो हर बच्चे का रीजन अलग लिखिए। आपके पास कितनी वैरायटी, इतनी आपको बुक्स में नहीं मिलेगी जितनी आपके 40 बच्चे लेकर आएंगे क्रिएटिविटी। लेट अस टीच इन दिस मैनर। ये भी आर्ट है, ये भी एक कला है, और हम सब में है, पर हम उस तरीके से कई बार सोचते नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है। मेरे को भी कई बार लगता है कि हाँ, मुझे ये ऐसी चीज क्यों नहीं सिखाई गई। मेरा कई मन करता है कि मैं अभी पढ़ना शुरू करती है, या मैं भी शायद अभी मेरा बर्थ हुआ होता, मैं अभी के स्कूल्स में जा रही होती, मुझे ऐसा नहीं पढ़ाया गया। बस वो बच्चों में ऐसा हो कि बच्चा छुट्टी ना करे, आज बस उसको कुछ हो जाए कि आज मेरी मैम नहीं आई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवाई लेके चला जाऊंगा स्कूल में, बट आई हैव टू बी देयर। देयर शुड बी समथिंग न्यू। वो मिस करें अपने घर में, संडे का दिन भी बर्दाश्त ना हो उनको घर में बैठकर। बस ऐसी एनर्जी फूकनी है बच्चों में, ऐसा कनेक्शन होना चाहिए। आपको पता है बच्चे आपकी बात सुनते हैं और आपको वो कहाँ कैसा दर्जा देते हैं। पेरेंट्स अगर बोल दे इस चीज को ऐसे कर लो, मेरे को तरीका पता है, बच्चा बोलता है नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू इट, मेरी मैम ने सिखाया ही ऐसे करना है तो ये ऐसे ही करना है। वो बोलेंगे आपको शॉर्टकट बताते हैं, बेटा मैं भी तो मैथ्स पढ़ा हुआ हूँ, मैं बता रहा हूँ ऐसे कर लो। नहीं, मैं आपके तरीके से नहीं करूंगा, जो मैम ने बोला है वही सही। वो आपको इतना इस लेवल तक लेकर जाते हैं, तो क्यों नहीं हम उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएं। वी आर द क्रिएटर्स। हमारा काम कोई बिजनेसमैन जैसा तो है नहीं कि दुकान रखी है और सामान बेच रहे हैं। हम तो जिंदगी बनाते हैं, और वो सारी जिंदगी वो असेंबली लाइन जैसी नहीं है, कोई ग्लास, कोई कुर्सी, कोई मेज नहीं बनाना है। आप यहाँ पर बैठे होंगे, सभी जिन कुर्सियों पर, जिन चेयर्स पर बैठे हैं, सभी एक जैसी होंगी ऑलमोस्ट, अगर वो एक ही ब्रांड की।
एक ही कंपनी से अगर एक ही जगह पर ऑर्डर की गई, अगर वो कंपनी बनाती है थोड़ा सा चेंज होता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि ये सही नहीं बना प्रोडक्ट। बच्चों को कम से कम ऐसा नहीं बनाए। हर बच्चा यूनिक है, उसको अपने तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दें। उनके पास अपने चैलेंजेस आएंगे। आप बताइए, जितने लोग बैठे, क्या हर एक को जिंदगी में पढ़ने की ही बात कर लें, जॉब की ही बात कर लें, इंटरव्यू की ही बात कर लें, क्या सबको एक जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? नहीं, सबके चैलेंजेस डिफरेंट थे। और अगर किसी के लिए, दो लोगों के लिए चैलेंज सेम होंगे तो दोनों के फाइट का तरीका, चैलेंजेस को ओवरकम करने का तरीका अपना अलग होगा, अपनी कैपेबिलिटी, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग। बस हमें अपने बच्चों को यही सिखाना है कि किस तरीके से वो आगे बढ़े। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये सब कुछ एक चीजें हैं। दैट्स इट। बस थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस। आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि इस तरीके से अगर हम बच्चों को अपने पढ़ाएंगे ना, बताइए एक सेंटेंस में कोई भी बताना चाहे कि अगर कैसा फील होगा आपको और आपके बच्चों? एनीवन? We would Yes, like the ma'am. feedback from you all, please. The first row was very much participative. Please come forward and give your feedback. Yeah. The first row, middle one, rather than talking to the person sitting next to you, share it with us. We would love to hear it. Anyone? Just बताइए कि कैसा लगेगा आपको? Yeah, yes, please. मैम, एक पहले तो हमें अच्छा लगेगा कि जो चीजें हम अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में नहीं सीख पाए हैं, वो हमारे बच्चे सीख रहे हैं। और साथ में उनके साथ साथ ही जैसे उनको स्कूल से टास्क मिलेंगे, कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगी, उसके साथ साथ हम भी सीखेंगे। Yeah. तो हमारे लिए भी काफी कुछ नया होगा सीखने के लिए, और हमारे बच्चों की हमें वो फिक्र नहीं होगी जो हमें अपनी, हमारे माँ बाप को हमारी थी कि ये इनका बड़े होके क्या होगा, या उस तरीके से बच्चों की तरफ से हम थोड़े से टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि वो स्कूल में भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। हम पर मतलब 50, वो तो 50% ही होगा, 50% टीचर्स करेगा, 50% हम देंगे। मगर मतलब हमें उसमें काफी चीजें नई मिलेंगी जो हमने नहीं सीखी। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम, थैंक्स फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। इस तरीके से अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे ना, आपको भी मजा आएगा। अब मैं अगर आपसे डिस्कस कर रही थी अभी, तो खैर इट कुड नॉट बी दैट मच इंटरैक्टिव, क्योंकि अभी प्रोजेक्टर के पास आकर आप बात कर रहे हो सकता है कि अगर ये इन पर्सन सेशन हुआ होता, मैं वहां पर खुद मौजूद होती, रचना जी होते, आपसे बात करते, तो जो नहीं भी बोलते ना, हम तो उनसे भी बुलवा लेते। ठीक है? तो ये चीज तो हम करते, राइट? वो कोई आगे नहीं आना चाह रहा, ठीक है, कोई पीछे ही है, तो हम खुद ही उठ के चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, टीचर खुद ही चला जाता है बच्चों के पास में कि कोई बात नहीं, नहीं आ रहे, हम ही आ जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से लेट अस मेक इट टू दैट लेवल कि वो बच्चों के अंदर इस तरीके से मच जाए कि पढ़ना मतलब यस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होना चाहिए एंड दे शुड टेक द ओनर्स ऑफ देयर लर्निंग। जब वो ओनरशिप लेंगे अपनी लर्निंग का कि मैंने पढ़ना है, खुद पढ़ना है, अपने पढ़ना है, ना माँ बाप के लिए पढ़ना है, ना टीचर के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना, मुझे अपने लिए पढ़ना है, अपने लिए एक्सप्लोर करना है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने सोचा था 1 घंटे का सेशन 11 बजे शुरू होगा, मैं 12 बजे इसको खत्म कर दूंगी, राइट? और मुझे नहीं पता चला कभी 1 बजने को आया। Ma'am, I would like to add one instance. As you said ना कि हम पेरेंट्स से भी काफी कुछ सीखते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ. My son is now 21 year old. Okay, when he was in first standard, 6 साल का बच्चा, उनके स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ 15 years back. इंटर स्कूल कंपटीशन, that was painting without brush. लर्निंग का मैं बात बताती हूँ. पेंटिंग विदाउट ब्रश, अगर आज आप लोग को भी बोला जाए कि विदाउट यूजिंग द ब्रश वी वांट यू टू डू अ पेंटिंग, इमीडिएटली आप कर पाओगे? यस मैम। हो सकता है इमीडिएटली नहीं ख्याल आए मन में, बट मोस्टली अगर बच्चों के मन में वो चीज नहीं आएगी। मोस्टली अगर आप एडुकेटर हो, यू कैन डू इट, बट अगर 6 साल के बच्चे को बोला जाए
I just started my educational career. That time even I did not have much knowledge. अब क्या करें, पेंटिंग विदाउट ब्रश में क्या कराए, बच्चे को है कि मुझे तो पार्ट लेना ही है. I had 150 students for my Vedic maths. मैंने वो चीज जो मेरे बच्चे के स्कूल में आया, वो चीज मैंने अपने वैदिक मैथ्स में क्लास में बच्चों को दे दिया. You will not believe, I got 150 ideas. कोई वो जो बर्ड्स होते हैं ना, ईयर क्लीनिंग वाले, कोई उससे करा रहा है, कोई थम से फिश बना रहा है, कोई, and I could make a whole jungle out of it. I could teach my son how to paint a jungle. A 6-year-old child painted without using pencil, eraser, brush. He painted the whole jungle, and he came out not only inter-school, Maharashtra level, he came out first. So why I mentioned this, like when Meenakshi ma'am said, we also learn lot of things when we put it to the kids. We also learn lot of things from them. क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी, डिजाइन थिंकिंग, ये सब हम बच्चों से भी काफी कुछ सीखते हैं. जब आप बच्चों को इन्वॉल्व करोगे, उनके आइडियाज आएंगे, तो एज एडुकेटर्स ईच डे ऑल्सो वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स. Thank you for this opportunity, and thank you all of you for being interactive, right? At least जिन्होंने नहीं भी interact किया, you have been active listeners. Thank you. Thank you so much, ma'am. And I would like to thank the management of Himalayan Education Mission School for giving us this opportunity. And thank you, Dr. Meenakshi Narula, for such an insightful learning. And I'm sure, teachers, it had been beneficial. First time we are doing it online, but soon we will be right there. Both of us will be right there in your school, taking live offline sessions. And thank you for being patient and coming out of your comfort zone on a Sunday morning for a new learning. And I hope the process will be on, and there is some good takeaways for you all. If there is a good takeaway, show us a thumbs up. If you all are happy with the workshop today, thumbs up with both your hands with a smiling face. Thank you so much, Dr. Narula, for such an insightful session. Thank you.